I think we should start now. So, कर दीजिए मैडम, yes, स्टार्ट कर दीजिए मैडम। हाँ, start करते हैं। Very everyone kindly mute your mic. A very happy good afternoon to all my participants present here. Today we all are here to discuss about something new which is running in the market, that is called entrepreneurship. And today in this lecture we will cover entrepreneurship concepts, importance and characteristics. Entrepreneur, I will use both English and Hindi as well, so that my student will be comfortable, and who are present from the other state and from the MP also. इनको मिल भी जाती है तो अभी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। Mayank sir, Mayank, काम है वो उनकी बिल्कुल ही काम है। please take care of muting the So, entrepreneurship का कंसेप्ट क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मे बी मैं आपको बता दूं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको लगेगा ये बहुत बेसिक हैं, बट व्हेन यू आर इन द एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी आपको बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको क्लियर होना पड़ेगा कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ईच एंड एवरी टर्म्स का और वो कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं इस पर्टिकुलर जर्नी की सक्सेस में। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप कंसेप्ट। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली कंटेन three words, that is enterprise, entrepreneurs and entrepreneurship. ये तीन इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपका एंटरप्रेन्योरशिप कंप्लीट कंटेन करता है। ये जो तीनों वर्ड्स हैं दिखने में बहुत ही सिमिलर हैं, बट मीनिंग में, वर्किंग में, प्रिंसिपल्स में, these three words are very very different from each other. Now let's discuss about the enterprise. In this particular webinar, I will discuss the concept and try to connect it with the real life example, that is called analogy in our teaching methodology. And we will also discuss some real life examples of some startups that are successful in the market. And at the end, we will also discuss some big failure stories of the startups that you all know, and so many other things are also in this presentations. So let's start with the entrepreneurship concept. First of all, now what do you mean by the enterprise? As the entrepreneurships contain three words: enterprise, entrepreneurs and entrepreneurship. Now let's discuss enterprise. What do you mean by the enterprise? Enterprise is just a organization. एक organization होती है. It can be product based, goods based और सर्विस बेस्ड। जैसे आज की डेट में मैं इसको एनालॉजी से कनेक्ट करूं तो एंटरप्राइज मतलब, जैसे सपोज करिए किसी ने मार्केट में कोई शॉप डाली तो आपने अक्सर नाम सुना होगा कि फॉर एग्जांपल अनुपम एंटरप्राइजेस, अंबा एंटरप्राइजेस, कुछ इस तरीके के आप लोगों ने नाम सुने होंगे। ये हमारे जो रियल लाइफ के, जो हमारे एक्चुअल जो बिजनेसमैन हैं, वो ये वर्ड बड़ा स्मार्टली यूज करते हैं, एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, सो मेनी थिंग्स। तो एंटरप्राइज मतलब कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक ऐसी व्यवस्था जहां पर या तो कोई प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है, वेयर यू आर सेलिंग सम प्रोडक्ट, दैट इज आल्सो नोन एज गुड्स, GOODS, एंड you can also provide some services, some specific services. Specific services means what kind of facility you can provide with the help of your enterprise, like food services, like doorstep delivery services, like some Shopify website is also a service based enterprise, like Amazon, like Myntra, Snapdeal. These all are the examples of the enterprise, but the taste of this enterprise are service based. They are providing a specific service to the customers. They are not having their own products. Maybe now they have, but
The nature of service-based enterprise is that they are mainly in the market to provide these services to the intended or the targeted customers. Now, this is the product based. Like suppose you are the owner of some parachute hair oil and you want to sell some product related to the hair oil and related to the hair products. So this is the product. Sunsilk, this is the product. Clinic Plus, this is the product. Now we are in nowadays we are getting used to with so many health related product, organic product. So many companies are in the market which are selling you the health related products. So two kinds of things are present in enterprise. One is product based and another is service based. So from the very beginning, when you are having some concept in your mind that in future I will open my enterprise, then what is the base of that enterprise? Are you selling some product, or are you going to provide some services? So you have to decide in this two broader domain कि आप कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे या आप कस्टमर को ऑलरेडी अवेलेबल जो फैसिलिटीज है उसमें से ही कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे. आगे बढ़ते हैं. It is the mass that with four important factors: land, labor, capital and the entrepreneurs. Enterprise जो है वो complete कब होती है? जब या तो उसमें लैंड इन्वॉल्व हो. लैंड मतलब या तो आपके पास कोई फिजिकली अवेलेबल शॉप्स हो या तो आपके पास कैपिटल हो. कैपिटल मींस इन टर्म्स ऑफ मनी. एंड एंटरप्रेन्योर्स मतलब आप जैसे यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जो मिलकर के काम कर रहे हैं या कोई सिंगल एंटरप्रेन्योर जो स्टैंड अलोन सिंगल कंपनी खोल करके काम कर रहा है. सो एंटरप्राइज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. किसी भी एंटरप्राइज की मतलब किसी भी सर्विस बेस्ड या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या एंटरप्राइज की सक्सेस मेजर की जाती है या डिपेंड होती है हार्ड वर्क्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स. एंटरप्रेन्योर्स मतलब हम जैसे लोग, आप जैसे लोग. जो ऑडियंस आज यहाँ पर इकट्ठी हुई है वो इसलिए इकट्ठी हुई है बिकॉज इन देयर समवेयर इन देयर माइंड समथिंग इज देयर कि यार मैं आगे जाकर के कुछ तो ऐसा खोलूंगा, कुछ एंटरप्रेन्योर बनना है, मेरे को स्टार्टअप खोलना है. तो वो जो आप स्टार्टअप खोलने वाले हैं उस एंटरप्राइज की सक्सेस आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करेगी कि आप कितना इनपुट उस पे दे पा रहे हैं. नाउ द सेकंड कंसेप्ट इज एंटरप्रेन्योर्स. Here we are discussing three major concepts of entrepreneurship. One is enterprise. We have already discussed. Some participants joined late. And second one is entrepreneur. We are discussing right now. Now entrepreneurs. Entrepreneurs. This is the Greek word, which is having a meaning to undertake something, to care for something, to take responsibility of something. इट मीन्स एंटरप्रेन्योर एक ऐसा बंदा होगा, एक ऐसा पर्सन होगा जो हम बड़े कहना चाहिए एक ऐसे वर्ड में हम उसको बड़े एक अच्छे वर्ड से उसको डिनोट करते हैं, फाउंडर. दैट इज कॉल्ड दैट आई एम द फाउंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटरप्राइज एंड माय फ्रेंड इज द को-फाउंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटरप्राइज. मतलब हम कहते हैं ना बिजनेस में, हम कहते हैं यार ये मेरा पार्टनर है, मैं पार्टनरशिप में धंधा चलाने वाला हूँ, मैंने पार्टनरशिप में ये धंधा खोला हुआ है, ये बिजनेस खोला हुआ है. लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर आप क्या यूज करते हैं? फाउंडर. मैं इसका फाउंडर हूँ. आई एम द, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में कहते हैं आई एम द सीईओ. सो एंटरप्रेन्योर्स आर द पर्सन हु इज द रिस्पॉन्सिबल वन टू अंडरटेक दैट एंटरप्राइज, टू रन इट. नाउ द सक्सेस ऑफ एनी एंटरप्राइज इज द कंबाइंड हार्ड वर्क ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स who can undertake the moderate risk of enterprise. Now यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है moderate. इसमें हम बोल सकते थे हाई रिस्क भी बोल सकते थे, इसको हम लो रिस्क भी बोल सकते थे. लेकिन जिस तरीके से गौतम बुद्धा ने बीच का रास्ता अपनाया था उसी तरीके से जो आज के एंटरप्रेन्योर्स हैं वो मॉडरेट रिस्क लेते हैं. मॉडरेट मतलब जैसे कि कहना चाहिए जुए का गेम होता है, उसमें आदमी दांव पे सब कुछ लगा देता है, हाई रिस्क वाला गेम है. बट एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योरशिप मॉडरेट रिस्क वाला काम है. कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो भी गेम खेलने आता है एंटरप्रेन्योरशिप का वो पढ़ा लिखा होता है, वो उसके अंदर एक जज्बा होता है कि यस मुझे कुछ करना है, उसके अंदर एक आग होती है मुझे कुछ करना है, और वो बिल्कुल सोच समझ कर धीरे धीरे कदम रखता है. दैट्स व्हाई एंटरप्रेन्योर
is comes under the risk of moderate risk takers. In a nutshell, it is the person whose anatomy will look like this. Here this diagram will depict you that what exactly the entrepreneurs कैसे होते हैं. आप लोग जैसे देखते होंगे सेलिब्रिटीज को देखते हैं, हम कहते हैं यार ये बड़ा अलग है, पता नहीं क्या खाता है, ये इतना दुबला है, इतना स्मार्ट है, यंग है, इतने एज में भी. इसी तरीके से ना एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं. एंटरप्रेन्योर्स लेकिन कैसे होते हैं और एक एंटरप्रेन्योर को कैसे होना चाहिए, हम ये डिस्कस करने बैठे हैं. क्योंकि आप में से ही कोई एक एंटरप्रेन्योर निकल के आएगा और जो हमको भी थोड़ा बहुत क्रेडिट देगा कि सेज ग्रुप ने हमारे नॉलेज में कंट्रीब्यूशन करा. सो द एनाटमी ऑफ एंटरप्रेन्योर इज, कैसी होती है एनाटमी? ब्रेन फुल ऑफ ग्रेट आइडियाज. उसका जो ब्रेन होता है ना एंटरप्रेन्योर का, ग्रेट आइडियाज से फुल होता है. मतलब उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है, कुछ आइडियाज चलते रहते हैं. उसका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है. वो उसका जो माउथ होता है, वो जब भी मुंह से बोलता है ना, तो वो किसी ना किसी विजन के बारे में बात कर रहा होता है, ना तो कोई गॉसिप के बारे में. कोई गॉसिप में नहीं पड़ता वो बंदा क्या करेगा? ग्रेट आइडियाज विद अ पर्टिकुलर विजन फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक. स्टमक, उसका जो स्टमक होता है ना, उसके अंदर कुछ कुछ तितलियां चलती रहती है. अरे मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, तो मुझे इसको करने के लिए मुझे क्या करना होगा, व्हाट आई कैन डू टू कन्वर्ट दिस आइडिया इनटू द रियल वर्ल्ड थिंग. Eyes looking for opportunities. Looking for opportunities is a very, very important characteristics, very important anatomy of an entrepreneur, because in the market हर बंदे के पास दो आंखें हैं, सभी के पास भगवान ने सेम चीजें नवाजी है, लेकिन आईज जो है एक एंटरप्रेन्योर्स की, वो देखती है गैप, कि कहाँ पर गैप आ रहा है और मैं कहाँ पर बाजी मार लूं. जैसे कि जोमेटो का आप एग्जांपल देखिए. जो एंटरप्रेन्योर है जोमेटो का, उसने क्या अपॉर्चुनिटी देखी? क्या पहले जमाने से रेस्टोरेंट नहीं खुले आ रहे हैं मार्केट में? क्या बड़े बड़े रेस्टोरेंट नहीं है, 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, बड़ी बड़ी होटलें, छोटे छोटे स्ट्रीट वाले जो आप लोग खाते हैं गुपचुप वगैरह, वो क्या पहले से नहीं थे मार्केट में? लेकिन जोमेटो जो एंटरप्रेन्योर है, उसने क्या चीज देखी, उसमें उस बिजनेस में भी उसने एक बिजनेस देख लिया कि मैं क्यों ना होम डिलीवरी प्रोवाइड करूं, और ऐसे कॉलेज के बच्चे जो कि पर्टिकुलर थिंग के लिए नहीं है या नहीं रीच कर पाते हैं चीजों को, क्यों ना मैं उनको होम डिलीवरी दूं और उसमें भी डिस्काउंट दे दूं. आप देखिए आज जोमेटो कितनी $1 मिलियन कंपनी है, मैं आपको आगे बताऊंगी. एंड ईयर्स, जो उसकी कान होते हैं ना, वो हमेशा फीडबैक के लिए रेडी रहते हैं. फीडबैक से मतलब क्या है? क्रिटिसाइज नहीं होते ये बंदे रेडी टू फेस द क्रिटिसिज्म्स होते हैं. वो क्रिटिसिज्म्स को फेस कर सकते हैं. दे लिसन द फीडबैक एंड आफ्टर एनालाइजिंग द फीडबैक दे विल अप्लाई दैट फीडबैक इन देयर एंटरप्राइज. अपने एंटरप्राइज में वो फीडबैक को अप्लाई करते हैं. तो आप लोगों को यदि एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में जाना है तो जज योरसेल्फ. क्या आप में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? क्या आप छोटी छोटी बातों में क्रिटिसाइज तो नहीं हो जाते? क्या आपका दिमाग हमेशा आइडिया से भरा होता है? क्या आप आगे के लिए सोचते हैं, या पीछे का आपके जो पास्ट की आपकी डिफिकल्टीज हैं, जो पास्ट की आपकी अनसक्सेसफुल स्टोरीज हैं, उन्हीं का गाना गाते रहते हैं? या अपॉर्चुनिटीज के लिए कहीं निकलते ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना स्टफ है कि टाइम ही नहीं है भाई नई चीजों को देखने के लिए. और उसका जो हार्ट होता है एंटरप्रेन्योर का, वो फुल ऑफ पैशन एंड डिजायर्स होता है. डिजायर्स होती है उसमें, उसको कुछ करने की. तो आप अपने आप को नापें, क्या आप में है ये गट्स, तो आप सही रास्ते पर हैं. उसका माइंड कुछ इस तरीके से वर्क करता है एंटरप्रेन्योर का. डिटरमाइनिंग द व्हाट, व्हाई एंड हाउ ऑफ द एंटरप्रेन्योर माइंडसेट. उसके दिमाग में चलता रहता है व्हाट है, क्या, क्यों है, इसको कैसे कन्वर्ट करना है, किससे रिलेटेड? उसके जो आइडियाज हैं उससे रिलेटेड. द माइंड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. माइंड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर कैसा होता है? यदि उसने किसी एक आइडिया के बारे में सोचा है, तो एज पर दी यस्टरडे शिवानी मैडम सजेशंस, दैट सजेशंस की भाई नोटेड डाउन कर लेता है. क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, हर टाइम सोचते रहता है. कुछ आइडियाज अच्छे आते हैं, कुछ चले जाते हैं. तो हमें सोचते रहना है. रिविजिट योर विजन ऑन द डेली बेसिस. जो आइडिया हमने सोचा है, हम उसको फिर से सोचते हैं. अगेन वी रीथिंक ऑन दैट आइडिया कि वेदर इट कैन बी कन्वर्टेड इन अ एंटरप्राइज और नॉट. और करना तो कैसे करना है? अप्रोच प्रॉब्लम फ्रॉम ऑल साइड. सभी तरीके से प्रॉब्लम्स आती है, बट उनको किस तरीके से हैंडल करना है, अप्रोच करना है. यूज नेटवर्किंग टू बिल्ड योर बिजनेस.
जो एक एंटरप्रेन्योर्स होता है ना, वो एक आइसोलेटेड पर्सन नहीं होता है. he or she is not at all isolated person. एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत खुश होता है, बहुत हैप्पी होता है, और उसको नेटवर्किंग में मजा आता है, वो कनेक्ट बढ़ाता है. और आज की डेट में यू ऑल पीपल आर सो ब्लेस्ड कि हमारे पास सोशल मीडिया है एंड वी कैन डू पेड मार्केटिंग इन ऑर्डर टू इंक्रीज आवर कनेक्ट. हम अपने कनेक्ट को बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं. तो यदि आपके माइंड में ऐसा है कि यार आप झिझकते हैं, आप डरते हैं, आप क्राउड से डरते हैं, तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते. क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं आइडिया के बाद जो लगती हैं, उसमें आपके यही सारी फीलिंग्स, यही सारी प्रॉपर्टीज काम आती हैं. पुट योरसेल्फ इन द चैलेंजिंग सिचुएशन. क्या आप चैलेंजेस से डरते हैं? क्या आपको डर लगता है, अरे यार मुझे इंग्लिश नहीं आती यार, मैं कैसे फेस करूंगा उसको, मेरे पास आइडिया है लेकिन मैं कहाँ जाऊं, मैं कैसे रिपोर्ट बनाऊं क्योंकि मेरे को तो टाइपिंग ही नहीं आती है. क्या आपके दिमाग में अभी तक यही चलता है? यदि आपके दिमाग में ये चलता है तो चेंज योरसेल्फ. बिकॉज जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दे आर high level of learners. They will learn most of the things. They don't worry about their weaknesses. They on the daily basis they learn and they recover the weaknesses. Always in the motion, provide values. Failure is the part of process. और जो छोटी छोटी फेलियर्स होती है उनसे घबराते नहीं है. वो ये सोचते हैं इट इज द पार्ट ऑफ लाइफ. चलो ये फेलियर में मैं क्यों फेल हुआ यार, ये कारण रहा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए मैं वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया. हो सकता है इसलिए मैं वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सही से नहीं बता पाया, अपनी सर्विसेज सही से नहीं बता पाया. तो दिस ऑल आर द माइंड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एवरेज माइंडसेट एंड द एंटरप्रेन्योर माइंडसेट. नाउ मैं यहाँ पर ये चीजें क्यों डिस्कस कर रही हूँ, ये चीजें आपको नेट पर भी मिल सकती हैं, बट द मेन गोल बिहाइंड दिस इज टू मेक योर माइंड. क्योंकि आज आपका दिमाग है, जो आपका मन है और जो आपकी बॉडी का जो डेली रूटीन है, वो सब कुछ सिंक होकर के चलते हैं. यदि आपका मन ही अच्छा नहीं है और आपके दिमाग में आइडिया अच्छे नहीं है, तो आप कोई नया वेंचर नहीं ला सकते, आप कोई नया एंटरप्राइज नहीं सेटअप कर सकते. सो एवरेज माइंडसेट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज दैट. जो एवरेज माइंडसेट के लोग होते हैं वो जॉब के लिए सर्च करते हैं, कहीं से पैसे उधार ले लेते हैं, इसके बाद कोई पर्टिकुलर कोई फर्म खोलते हैं. जबकि एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट क्या होता है कि मुझे अपने इंडियन गवर्नमेंट की इकोनॉमी में या जो भी गवर्नमेंट में आप बिलोंग करते हैं उस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करना है, मुझे लोगों को जॉब देनी है एंड आई वांट टू बी द लीडर इन दैट वर्ल्ड, नॉट द बॉस. लीडर बनेगा वो जिससे कि वो दूसरे लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर पाए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Entrepreneur is a person who can be the capitalist, employer seeking profit. Obvious सी बात है, in this इतना खर्चीले वर्ल्ड में हर कोई चाहता है पैसा कमाना, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स का जो पहला काम होता है ना, वो पैसा कमाना नहीं है. पहला काम है रिस्क लेना, और जो प्रॉब्लम्स मार्केट में आपको दिख रही है उसको किस तरीके से अपने कोऑर्डिनेशन स्किल से, अपने इनोवेशन से, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से और रिस्क कैलकुलेटिंग फैक्टर से वो किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, दैट एंटरप्रेन्योर्स विल लुकिंग फॉर इट. नाउ आप लोगों ने सुना होगा एंड आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड द मेंबर्स present here may be somewhere in your family, may be the businessman, किसी का पेट्रोल पंप होगा, किसी का कुछ होगा. तो हो सकता है कि आप किसी एक ऐसे घर से बिलोंग करते हैं जहाँ ऑलरेडी कोई बिजनेस चल रहा है, बट एग्जैक्टली हम कैसे पता लगाएं कि क्या डिफरेंस होता है एंटरप्रेन्योर्स में और बिजनेसमैन में. तो बिजनेसमैन मतलब कोई पर्टिकुलर बिजनेस आपने ओपन कर लिया, कोई जिसका प्रोसेस मॉडल, जिसका बिजनेस मॉडल ऑलरेडी डिफाइंड है. All the terms and condition, all the profits, loss, all the principles are well defined earlier and well documented, and you have to follow that procedure in order to become a businessman. Suppose you want to open a petrol pump, you know how you can open a petrol pump. If you have 1 crore in your pocket, you can open a petrol pump right now at anywhere. If you have a land, you can open it. But are you the entrepreneur at that time? No, big no. Because opening a already established businesses is not the entrepreneurs. Entrepreneurs क्या करते हैं? Entrepreneurs enterprise have their original idea. कुछ ओरिजिनल आइडिया होता है उनका, कुछ यूनिक आइडिया होता है. जबकि जो बिजनेसमैन होते हैं वो कॉपी करते हैं आइडिया. जैसे कि एक बंदे ने खोला ऑन डोर, दूसरे बंदे ने खोल लिया ऑफ डोर, तीसरे बंदे ने खोल दिया एवरी डोर. मतलब और काम वही कर रहे हैं, किराने ही बेच रहे हैं सबके सब. तो ये तो बिजनेस कॉपी करना हुआ. बट एंटरप्रेन्योर्स क्या करता है?
न्यू आइडिया लेकर के आता है, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जैसे कि आपका जोमेटो है। IRCTC इज ऑल्सो दी एंटरप्रेन्योरशिप एग्जाम्पल। आप एक समय पर रेलवे टिकट बुक कराने के लिए लाइन में लगते थे, आप घंटों घंटों 8 बजे मॉर्निंग में विंडो खुलती थी, लाइन में लग जाते थे हम सब, और हमें टिकट कटानी रहती थी। तो हमारे पास कोई ज्यादा डिटेल नहीं होती थी, तो हम क्या करते थे, हमें ट्रेन का भी पता नहीं है, हमको एक बड़ी सी मशीन सामने रखी होती थी। यदि हमें फॉर एग्जाम्पल कोई हमारा टिकट का नंबर का स्टेटस पता करना है तो हम रेलवे स्टेशन भागते थे, सामने एक मशीन लगी होती थी, उसमें हम वो कोड डालते थे टिकट का। लेकिन आज की डेट में IRCTC एक एंटरप्रेन्योरशिप उस पर्टिकुलर चीज ने कितना इजी कर दिया है। आप घर बैठे एट योर ओन पेस यू कैन बुक अ टिकट। That is the example of entrepreneur. So entrepreneurs are like the skydivers, they take crazy risk. Crazy risk तो है वो। और हमारा जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेस मैनेजर्स होता है, जो विल सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस शीट आपका मेंटेन करेगा और मैनेज करेगा रिस्क। उसको मालूम है यार कैपिटल खत्म हो रहा है, रोक लो, उधारी मत करो, कैपिटल खत्म हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिजनेसमैन को ऑलरेडी पता होती है, वो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेता है। सो इन अ ब्रॉडर वे आपको ये चीज माइंड में क्लियर होना चाहिए कि बिजनेसमैन क्या है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। यदि आप पाइप का धंधा खोलना चाहते हैं तो यू आर नॉट द एंटरप्रेन्योर्स। आप चाहते हैं कि मैं जूस का कॉर्नर खोलूं, यू आर नॉट द एंटरप्रेन्योर्स। बट यू इफ यू आर ओपनिंग अ बिजनेस दैट ऑनलाइन जूस सेलिंग बिजनेस, आप जूस ऑन डोर बुलाइए, हो सकता है ये एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया, कुछ नई नई चीजें आप उसमें लगा लें। बिजनेसमैन के ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसकी क्लियर होती है, ह्यूमन फाइनेंशियल इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज उसके क्लियर होते हैं। और कस्टमर जो है, हर एक बिजनेसमैन का अपना एक तरीका होता है बिजनेस करने का, जो कि हो सकता है ऑर्थोडॉक्स हो सकता है आज के हिसाब से हो। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, कंसेप्ट स्टार्ट एन एंटरप्राइज एंड ब्रिंग इट्स रियलिटी। ही इज द पर्सन हु बेयर्स रिस्क एंड अनसर्टेन of the business. The venture established by entrepreneur is known as startup companies. और हम आजकल बड़ा एक नया वर्ड सुनते हैं, कौन सा स्टार्टअप खुला है मार्केट में, जैसे चाय सुट्टा बार एक स्टार्टअप का एग्जांपल है। वो बेच तो चाय ही रहा है, 10 रुपए की चाय बेच रहा है। आप राजू टी स्टॉल पे जाते हैं सिटी में, 5 रुपए की चाय लेकर के आते हैं कांच के ग्लास में, लेकिन वहां का माहौल सही नहीं है भाई। तो चाय सुट्टा बार वालों ने नाम भी कैसा रखा, बड़ा ट्रेंडी, बड़ा फैशनेबल, जिसमें जो यूथ है ना वो बिल्कुल बिल्कुल रिझा के आए भाई कि अरे यार पता नहीं क्या खुला है सुट्टा बार भी, चलो देखते। लेकिन ऐसे बात कुछ भी नहीं है, उसने ऑर्गेनिक टी दे रहा है। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव विजिटेड द चाय सुट्टा बार, वो भी एक स्टार्टअप है, वो भी एक एंटरप्रेन्योर है। लेकिन उसका आइडिया देखो, बेचा चाय ही, बंदे ने 10 रुपए निकलवाए लेकिन जेब से सामने वाले के, और बढ़िया एक माहौल दिया, एक एनवायरनमेंट दिया, कुछ नयापन लेकर के आया, वो आपका एंटरप्रेन्योर है। Entrepreneurs in economy, the entrepreneur is considered as the most important factor of production, which assemble and mobilize the other 3 factors of production. जो हमारी इंडियन इकोनॉमी की आज की डेट में ग्रोथ है, उसमें एंटरप्रेन्योर्स की बहुत जरूरत है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, नया आइडिया लेकर के आते हैं, लोगों को बिजनेस देते हैं, लोगों को नए अपॉर्चुनिटीज देते हैं जॉब ज्वाइन करने की। और इंडिया की इकोनॉमी में जो फाइनेंशियल इकोनॉमी आज हमारी टूट रही है ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू पेंडेमिक, उसको इसलिए हम आत्मनिर्भर भारत का मोदी जी का इतना ज्यादा सुन रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को पता है हमारे देश के नौजवानों में है वो जज्बा कि वो एंटरप्रेन्योरशिप खोल सकते हैं। बस उनको जरूरत है अवेयरनेस की, आइडिया की, जो सेज ग्रुप आपके लिए लेकर के आया है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 6 डेज का। नाउ अब देखते हैं माइंडसेट। यदि एक तरबूज है तो बिजनेसमैन क्या सोचता है, और एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या सोचता है। अब वेरी इजी एग्जांपल, मैं ये नहीं कह रही कि आपको तरबूज बेचना है, बट मैं ये कह रही हूँ कि एग्जांपल आप देखिए। एक बिजनेसमैन क्या सोचेगा, यदि मैं $3 का तरबूज लाया तो मैं इसको 4 में बेचूंगा यार, $1 बचेगा मेरा। ये बिजनेसमैन का आइडिया। उस हिसाब चलो लाके स्टॉक में भर के रख लेते, जैसे सीमेंट वाले स्टॉक में सीमेंट भर के रख लेते हैं बोरी, और वो जब मौका आता है तब बड़े रेट में बेचते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, नहीं मैं 4 तो नहीं, मैं 8 कमाऊंगा, इससे कमाऊंगा ज्यादा, लेकिन तरीका मेरा अपना होगा। तरीका मेरा अपना होगा, मेरा अपना मतलब मेरा खुद का यूनिक आइडिया होगा कमाने के लिए। तो उसने क्या किया, उस पर्टिकुलर तरबूजे का निकाला जूस और उसको बेचा $8 में। जैसे कि आपने पेपर बोट एक कंपनी सुनी होगी, वो भी जूस ही बेचती, और $1 मिलियन कंपनी है मार्केट में। पेपर बोट बिल्कुल जूस टेट्रा पैक में आपके जूस आते हैं, आप हम जैसे लोग ही उस जूस को ज्यादा रेट में लेते हैं, जबकि बाजू में जूस वाला यदि पर्टिकुलर फ्रूट वाला खड़ा है तो हम अवॉइड कर देंगे, यार कौन करे, क्योंकि हमारे डेली लाइफ, हमारी जो आज की डे टू डे रूटीन है इतनी बिजी है कि हम सोचते हैं अरे यार
ऐसा कुछ काम करो जो स्वीट एंड शॉर्ट में हो जाए। तो सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है मार्केट का आज, कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए, यही गैप आप लोगों को सर्च करना है। देन जैसे सपोज करिए आप किसी ऑनलाइन शॉपिफाई वेबसाइट पे जाते हैं, आप ऑफर्स रिझा जाते हैं, मिंत्रा वाला 26 जनवरी को ऑफर निकालेगा, अमेजोन वाला ऑफर निकालेगा, आपको मालूम है ये सारी चीजें न्यू मार्केट में भी मिलती है यार, लेकिन आप ऑनलाइन पे क्यों जाते हो, वहां कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलता है लोभ के कारण। तो वहां क्या है, ये $59 में मिल रहा है, लेकिन इसने क्या किया, इस पर्टिकुलर चीज को $59 प्लस बोला कि भैया हम आपको ये जो ग्लासेस हैं ये फ्री देंगे आपको, हम जस्ट 59.99, आपने पे भी उतना ही करा। आप कहते हैं ना कि 70% ऑफ, 80% ऑफ, आप कभी देखना वो ले दे के आपसे उतना ही उतना प्राइस वसूल कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का कांसेप्ट क्या है। हमने एंटरप्राइज पढ़ा, हमने एंटरप्रेन्योर पढ़ा, अब नाउ वी आर हियर टू स्टडी द एंटरप्रेन्योरशिप। आई डोंट वांट टू बोर यू एनीमोर। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप का कांसेप्ट क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्शंस डन बाय एंटरप्रेन्योर्स। मतलब आप जैसे पर्सन, आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कुछ एक्शंस परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश देयर एंटरप्राइज। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि हम यहाँ लर्न करने बैठे हुए हैं। इट इज द ऑनगोइंग प्रोसेस एंड रिक्वायर लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिवनेस। इनोवेटिवनेस मींस, इनोवेटिवनेस की क्यों इंपॉर्टेंस है ये हम लास्ट स्लाइड में जानेंगे, और क्रिएटिविटी की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी हम लास्ट स्लाइड में जानेंगे। एंड यू ऑल विल एग्री विथ मी कि वाकई में इनोवेशन होना चाहिए, नहीं तो अच्छे से अच्छा बिजनेस धरा जाता है। And its a success is totally depends on the characteristics of the entrepreneurs। मतलब आपका जो जज्बा है, आपकी जो चाहत है, लगन है, वो उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज को, उस पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योरशिप को की सक्सेस को डिफाइन करती है। सो हम देखते हैं इन नटशेल, व्हाट डू यू मीन बाय द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस एंड एंटरप्राइज इज द आउटकम। आप जब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस से होकर के निकलते हैं, तब आपकी एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज एज ए आउटकम आपके पास आती है। वो एक वेबसाइट भी हो सकती है, वो एक शॉप भी हो सकती है, वो एक प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो एक सर्विस भी हो सकती है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? आज मोदी जी या हर गवर्नमेंट आज एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप को इतना वजन क्यों दे रही है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे रही है? क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं इनोवेटिव्स होते हैं, रिसर्च करते हैं, फ्री मार्केट रिस्पॉन्स टू चेंजिंग एंड प्रेफरेंसेस एंड द टेक्नोलॉजी। क्योंकि आज की डेट में जो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, ऑल द ट्रेडिशनल बिजनेसेस, दे नीड सम रिफ्रेशिंग कंटेंट्स एंड द एंटरप्रेन्योर्स विल फिल दैट कंटेंट। दे आर एफिशिएंट, they are having some new product, new imagination, new things in their mind to provide to the customers. New gig economy, they are gig economy means वो economy में बहुत participate करते हैं, new values होती है उनके पास। Qualities of entrepreneurs, ये बहुत important है because you all are here to become the entrepreneurs। तो क्या क्या quality होनी चाहिए and judge yourself, क्या वाकई में आपके पास है, और नहीं है तो you will try to improve that quality। Strong desire to win, need for achievements, बहुत गहरी चाहत होती है इनके अंदर जीतने की, कुछ अचीव करने की, समथिंग लाइफ में कुछ बनना है, नाम कमाना है, कुछ कर गुजरना है। स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है। एंड अप्रोच ऑफ नेवर से डाई। नेवर से डाई मतलब हारना नहीं है, करना है। anyhow we have to handle the situation anyhow। Entrepreneurs prefer a middle of the road strategy while handling tricky situations, moderate risk bearer। मतलब वो बीच का कोई समाधान या बीच का कोई सलूशन निकालते हैं, और उस सलूशन से वो लोग क्या करते हैं, उस सलूशन से वो लोग ये करते हैं, कोई बीच का समाधान निकालते हैं कि पर्टिकुलर कोई ट्रिकी सिचुएशंस को वो कैसे हैंडल कर सकते हैं। ना तो वो बहुत हाई रिस्क लेते हैं, ना वो बहुत लो रिस्क लेते हैं। अलर्ट टू अपॉर्चुनिटीज एंड सीजिंग देम टू देयर एडवांटेज। अपॉर्चुनिटीज, मार्केट में चल क्या रहा है, क्या चाहता है कस्टमर, क्या गैप है कस्टमर्स को, क्या पेन पॉइंट है कस्टमर्स के। ऑल दीज थिंग्स आर हैंडल्ड बाय द एंटरप्रेन्योर्स। एबिलिटी टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज, यदि आप में ये वाला पॉइंट है, एबिलिटी टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी, देन डेफिनेटली यू विल बी द एंटरप्रेन्योर्स। दे हैव दिस पैशनेट अप्रोच टू द प्रॉब्लम। वो कुछ प्रॉब्लम्स को एनालिटिकल वे में थिंक करते हैं, सोल्यूशन देते हैं, या तो कुछ वेबसाइट के टर्म में, या तो प्रोडक्ट को इस तरीके से लॉन्च करते हैं जो इजी टू यूज हो, इजी टू हैंडल हो।
It is important for them to know how they are learning from the experience when they work on their goal and using feedback. मतलब वो criticism में नहीं चलते हैं. Suppose करूँ उनका कोई startup डल गया and after the startup they will do the market survey, they will do the feedback, they will collect the feedback by their customers कि यार मैं कहाँ पर वीक जा रहा हूँ या मेरा जो particular product है वो कहाँ पर वीक जा रहा है. So they will do all these things. सो फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका एक फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि यदि आप फीडबैक नहीं लेते हैं, ऑलरेडी एस्टैब्लिश एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो भी आपके साथ क्या हो सकता है. Entrepreneurs do not get deterred by unfamiliar situation, facing uncertainty. आज की पैंडेमिक सिचुएशंस में ऐसे कितने सारे यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स होंगे जिन्होंने अपनी एंटरप्राइज बिल्कुल 2020 मार्च में डाली होगी और उसके बाद लॉकडाउन लग गया होगा. आपको क्या लगता है, क्या वो लोग हार गए होंगे हिम्मत, या कुछ बीच का सोल्यूशन निकालने में लगे होंगे कि अरे नहीं यार, कुछ और बीच का सोल्यूशन हो सकता है, कुछ और समाधान हो सकता है इस प्रॉब्लम का, हिम्मत नहीं हारना है. सो दे डिसलाइक वर्किंग फॉर द अदर्स. अब भाई ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तभी तो आप बॉस बनना चाह रहे हैं, तभी तो आप लीडर बनना चाह रहे हैं, क्योंकि आप किसी और के लीडरशिप में या किसी और के बॉस के अंडर कंट्रोल में काम नहीं करना चाहते. सो दे डिसलाइक वर्किंग फॉर द अदर्स. मतलब इंडिपेंडेंस पसंद होती है, बिंदास होते हैं, अपने मनमौजी होते हैं, उन्हें अपने तरीके से काम करना पसंद होता है, अपने ढंग से अपने आइडिया लगाना पसंद होता है. इसलिए वो स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप बनने की रिस्क लेते हैं. लेकिन उसके साथ साथ वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनको भी तो किसी ना किसी को लीड करना है. एंटरप्रेन्योर्स थिंक्स अहेड ऑफ द अदर्स एंड प्लान फॉर द फ्यूचर प्लानिंग. मतलब वो फ्यूचर प्लान के लिए प्लान करते हैं. सो एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली जो है वो प्लानिंग के साथ काम करते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द प्लानिंग? प्लानिंग मींस आपके पास आइडिया है, बट उस आइडिया का कन्वर्जन कैसे होगा, उस आइडिया को कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीजें लगेंगी, क्या है आपके पास, क्या नहीं है आपके पास, व्हाट यू हैव, व्हाट टेक्निकल कॉम्पिटेंसी यू हैव, व्हाट नॉन टेक्निकल कॉम्पिटेंसी यू नीड, लाइक एंटरपर्सनल स्किल्स. जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर का सारा नॉलेज आने वाला ही एक स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर डाल सकता है. बिल्कुल ये जरूरी नहीं है कि कोई प्रोग्रामर है, कोई वेबसाइट डिजाइनर है तो वही आज की डेट में एंटरप्रेन्योरशिप डाल सकता है. आपको ऐसे बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपको आने चाहिए कि भाई डील कैसे करना है लोगों से. क्योंकि यदि आपके घर में कोई बिजनेस होगा तो आप अपने पापा, चाचा या ताऊ को देखते होंगे, तो वो आपने सिर्फ उनकी वो डीलिंग देखी होगी, वो किस तरीके से कस्टमर को कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ये सब चीजें भी आपको आनी चाहिए. दे कैन इन्फ्लुएंस अदर्स मीन्स वो इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं. हम बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स आते हैं, उन स्टार्टअप्स जो यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके स्टार्टअप्स को देख करके हम इन्फ्लुएंस होते हैं. दे मोटिवेट अस. सो दे कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग आवर्स, साइमल्टेनियसली टैकल डिफरेंट प्रॉब्लम्स विद स्टैंडिंग स्ट्रेस. मतलब दे आर हैविंग वेरी गुड ability to handle the stress. That stress can be any family related, any social, any financial. There are many kinds of stresses nowadays. They are having a very good ability to handle the stress. तो यदि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आप में इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए, आपको स्ट्रेस या सिचुएशन को हैंडल करते आना चाहिए, आपको फीडबैक से क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं लेना है, आपको पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट रखना है अपना कि भाई मुझे तो कुछ करना है. क्योंकि यदि आपका गोल और आपका फोकस क्लियर है तो दुनिया बोलती रहे, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है. अब यदि आपने एक एंटरप्राइज डाल ली और आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गए और आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी सक्सेस कैसे होगी, व्हाट फंक्शन यू हैव टू परफॉर्म, आप कौन कौन से ऐसे काम करेंगे. तो एक एंटरप्रेन्योर के पास आइडिया जनरेशन तो होता ही है एक काम. आइडिया जनरेशन मतलब यदि आज की डेट में आप लोग यदि कोई भी एंटरप्राइज एस्टैब्लिश नहीं करे हैं तो यू आर इन दिस फेज आइडिया जनरेशन. पहली सीढ़ी का पहला पत्थर आपके पास में है, बस आइडिया जनरेशन. आपके दिमाग में आइडिया है, लेकिन आइडिया जनरेशन के बाद ही सारी की सारी जर्नी स्टार्ट होती है. डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. आपने जो आइडिया लिया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों वो आइडिया लेकर के चले, स्टार्टअप क्यों खोला है. रेजिंग ऑफ द फंड मतलब फाइनेंशियल मैटर कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फाइनेंशियल चीजें आएंगी. हम देखते हैं इसमें आइडिया जनरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन. इट इज पॉसिबल थ्रू विजन, इनसाइट, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस,
एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपोजर टू द एंटरप्रेन्योर्स। आप जब जैसे सपोज करो आपको बिल गेट बनना है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? बिल गेट की जो दिनचर्या है, उसके पास भी भगवान ने 24 घंटे दिए हैं। बिल गेट की जो दिनचर्या है वो करता क्या है, वो सोचता कैसे है, वो एग्जीक्यूट कैसे करता है प्लान को, यदि आपको उसका सीक्रेट पता लग जाए तो आप भी बिल गेट बन सकते हैं, आप भी वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो आइडिया जनरेशन में ऐसी स्टेजेस होती है कि आपको कहीं से एजुकेशन लेना है, आपको ट्रेनिंग करनी है, आपको ऑब्जर्वेशन मोड में रहना, आपको मार्केट, आप जब भी जाए ना आपके दिमाग में गाड़ी चलने की, अरे यार पता नहीं क्या चीज है जो कर सकता हूँ मैं। आइडिया मार्केट में ही है, सारे आइडियाज आपके, आप कहीं भी किसी भी डेमोग्राफिक लोकेशन पे जाएंगे, n नंबर ऑफ आइडियाज आर देयर, बट यू हैव टू सर्च। डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, आप जो आइडिया ले रहे हैं, कंसीव करना चाह रहे हैं, उस आइडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है। 2 थिंग्स शुड बी क्लियर इन माइंड। सबसे पहले आइडिया क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आपका क्या दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये जो आइडिया है वो कौन से टाइप का बिजनेस होगा। जो मैंने आपको पहले बताया, मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा कि सर्विस बेचूंगा। प्रोडक्ट मतलब मैं कोई मैकेनिकल मशीन बनाऊंगा क्या, जो किसी की सुविधा या किसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है? क्या मैं कोई इक्विपमेंट बनाऊंगा जो किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? क्या मैं कोई प्रोडक्ट, हेल्थ केयर प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा? क्या मैं कोई वैक्सीनेशन लॉन्च करूंगा? क्या मैं कोई दवाई बनाऊंगा? क्या मैं कोई ऐसे क्लोथिंग मटेरियल बनाऊंगा जो बच्चों को बड़े ईजी होते हैं गर्मी में पहनने के लिए? मतलब ऐसे बहुत सारी एन नंबर ऑफ चीजें आर देयर। टाइप्स ऑफ द बिजनेस शुड बी क्लियर इन द माइंड। अब जैसे सर्विस बेस्ड है, सर्विस बेस्ड में आपको प्रोडक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो प्रोडक्ट के लिए सोचना ही नहीं है आपको। जब आप प्रोडक्ट के लिए नहीं सोचोगे तो आपकी प्लानिंग में प्रोडक्ट आएगा नहीं। बट जो ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे सर्विस में लेकर के आना है, उनको कैसे कस्टमर तक पहुंचाना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। Few functions of the entrepreneurs में raising of the fund is a very important function because all the activities depend upon the finance. Its proper management of the fund can raise internally or the externally. मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, हमारा जो कल का सेशन होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज कौन कौन सी फंडिंग एजेंसी है, कौन कौन से ऐसे फाइनेंशियल एजेंसीज हैं जो आप जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को फंड देती है, फाइनेंशियल मदद करती है कि आओ भाई मार्केट में अपना एंटरप्रेन्योरशिप, अपना स्टार्टअप खोलो। बट ये इतना आसान नहीं है। आई डोंट वांट टू डिमोरलाइज ऑल ऑफ यू बिकॉज रेजिंग ऑफ द फंड, आप बताओ आज आपके जेब में 200 रुपए है, आपका कोई ऐसा अपरिचित कोई बंदा आ गया और वो बोलता है यार मुझे 200 रुपए दे दे, क्योंकि ना मैं एक ऐसा दुकान डालूंगा, एक ऐसी शॉप डालने वाला हूँ जिसका 200 का 400 करके दे दूंगा। तो क्या आप इतनी आसानी से दे देंगे उसको अपने जेब के 200 रुपए? तो आप यही चीज बैंकिंग टर्म्स ऑफ व्यू में सोचें कि जो बैंक के ऑफिसर्स होते हैं, जो मुद्रा योजना, जो आपको लोन देते हैं, तो क्या आपके दिमाग में एक आइडिया है कि भैया मेरे को ये वाला स्टार्टअप खोलना है भाई, लेकिन क्या केवल एक आइडिया और एक लाइन के आइडिया से आप फंड निकाल सकते हैं बैंक के खाते से? क्या आप उस बैंक मैनेजर को इम्प्रेस कर सकते हैं? तो नहीं, आई से नो। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी स्टडी करने की आवश्यकता है। आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल, आपको अपना एग्जीक्यूशन, आपको अपना बिजनेस प्लान, आपको उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या पैसा लगाओगे, कितना लगाओगे, कहाँ से पैसा आप और एक्स्ट्रा अर्न करोगे, तो आपको उनको सेटिस्फाई करना होगा। आफ्टर दैट यू विल बी द एलिजिबल वन। सरकार भी पैसा दे रही है 10 लाख रुपए, PMMY योजना जो है मोदी जी की, वो 10 लाख रुपए देती है, बट एवे ही नहीं दे देती है, वो पहले आपको जज करती है। आप जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स कैसे होते हैं मालूम? जैसे कि हमने दूध उबालने जब हम गंजी में रखते हैं तो दूध कैसे ऊपर आता है और थोड़ी देर बाद उसका जो छाग रहता है किस तरीके से नीचे जाता है। तो यंग एंटरप्रेन्योर्स भी ऐसे ही रहते हैं, एकदम कुछ आइडिया आया और जुनून सवार हुआ और एकदम से वो नीचे भी चले जाते, एकदम डाउन भी हो जाते हैं। तो हमको बीच के लेवल पे गेम खेलना है। सबसे पहले हमें अपनी तैयारी पूरी करनी है, इसके बाद ही हम एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में सक्सेस हो सकते हैं। अब रॉ मटेरियल की बात मैं करूं तो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए है। जैसे कोई मैकेनिकल का स्टूडेंट है, कोई मशीन्स का कोई डिजाइन चाहता है जो मार्केट में लॉन्च करना चाह रहा है, तो उसमें आपके पास रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी। सबसे और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है मार्केट सर्वे। ना व्हाट डू यू मीन बाय द मार्केट सर्वे? आपने उस कस्टमर से बात ही नहीं करी जिसके लिए आप एंटरप्रेन्योरशिप खोलने वाले हैं, आपने उस बंदे से मिले ही नहीं, आपने उसके व्यू ही नहीं जाने, आपने देखा ही नहीं, जाना ही नहीं उसका पेन पॉइंट क्या है। सपोज करिए आप कोई ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप लेना चाह रहे हैं, लाना चाह रहे हैं जो मदर्स के लिए है, तो आप कम से कम 200, 300, 400 मदर्स जो हैं उनसे मिलिए, तो मार्केट सर्वे तो करिए कि वो क्या सोचती हैं, क्योंकि भगवान ने सभी को यूनिक बनाया है, सबकी सोच को यूनिक बनाया है। और जो आपका आइडिया है उस यूनिकनेस में कहाँ पर फिट हो रहा है, यू हैव टू स्टडी दैट।
दैट इज द मार्केट सर्वे। ये आप गूगल फॉर्म के थ्रू भी कर सकते हैं। आज की डेट में जो डिजिटल मार्केटिंग एरा है, आप गूगल फॉर्म बनाइए। आपके दिमाग में कोई आइडिया है कि मैं ये एक ऑनलाइन पोर्टल खोलने वाला हूँ, आपके पास मोबाइल नंबर आसानी से आ जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग आप लगाइए। आप मार्केट विजिट, आपकी कॉलोनी में ही बहुत सारी मम्मा मिल जाएंगी आपको, आप उनका मोबाइल नंबर पे आप सर्च कर दी, भाई 2 मिनट दीजिए, ये सर्वे कंप्लीट कर दीजिए। एटलीस्ट यू आर एट सम पॉइंट कि भाई क्या सोच रहा है आज का इंसान, जो मदर्स है जिनके लिए मैं स्टार्टअप खोलने वाला हूँ, वो सोच क्या रही है। So all these things comes in the market survey, and some management skills will definitely requires. You have to create some questionnaire. You have to create questionnaire in such a way कि आप जो already existing company है, already existing product है, उसका भी overview आप ले लें, और जो आप खोलने वाले हैं उसका भी overview ले लें, और सामने वाले को आइडिया डिस्क्लोज भी ना। सबसे बड़ी चीज, आइडिया डिस्क्लोज हुआ मतलब आपका आइडिया गया, आपका स्टार्टअप का आइडिया गया। तो आपका आइडिया ऐसा तो नहीं है कि आप ही को बस आइडिया आ सकता है, और भी तो लोग हैं जो उस आइडिया को सोच सकते हैं, और हो सकता है आपसे ज्यादा एलिजिबल हो, ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो, वो कर सकते हैं। तो मार्केट रिसर्च बहुत ही सावधानी से और बहुत ब्रॉडर वे में हमें करनी चाहिए। देन रिक्रूटमेंट ऑफ द मैन पावर। जब आपने आइडिया ले लिया, फंडिंग अरेंज कर ली, एंटरप्राइज आपकी एस्टैब्लिश हो गई, तो काम किससे करवाओगे? काम करवाने के लिए आपको मैन पावर होना। आप काम अकेले तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपके ख्वाब तो बहुत बड़े हैं। आप हो सकता है एक एंटरप्राइज आपने एस्टैब्लिश करी, आपके दिमाग में 2-3 एंटरप्राइज सेम और अलग अलग दिमाग में आपका चल रहा आइडिया। तो एंटरप्रेन्योर्स एक बहुत अच्छा रिक्रूटर होता है, जो मैन पावर को, जो अपनी टीम को लेकर के चलता है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझता है, उनकी डेली लाइफ की समस्याओं को समझता है, और किस तरीके से रिक्रूटमेंट करना है, कितनी ट्रेनिंग की आवश्यकता है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, जो उसके स्टार्टअप में साथ में है या जो उसके फ्रेंड साथ में है। ये सारी चीजें आपके एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। और इम्प्लीमेंट कैसे करना है प्रोजेक्ट को? इम्प्लीमेंटेशन आपका बहुत बाद का चीज है। जब आपकी सारी चीजें लाइन अप हो जाती है, तो आप उसको एक्शन में कैसे लेकर के आते हैं, ये फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योर्स का। चलिए, अब हम बोर नहीं करते हैं, हम कुछ अच्छी सक्सेस स्टोरीज हम एंटरप्रेन्योर्स की करते हैं, जिससे आप लोगों का मोटिवेशन और बढ़ेगा कि नहीं यार, ये भी तो वही बंदा है जो मेरे जैसा ही है, मेरे जैसे ही तो है ये देखिए आप, ओयो का एक बंदा है रितेश अग्रवाल। ये आपने मेरे ख्याल से अपने निशी सर ने भी, डॉक्टर निशी सर ने भी इसके बारे में बताया, लेकिन मैं इसके बारे में और डिटेल में आपको बताना चाहूंगी। मैं ये इसको क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये यंग है, आप जैसा यंग बच्चा है। रितेश अग्रवाल वर्ल्ड यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर है ये। ओयो रूम्स तो सबने ये यूज करे होंगे, मेरे ख्याल से यंग जनरेशन बैठी हुई है, ओयो रूम्स का कंसेप्ट सबको पता है। तो क्या पहले रूम रेंट पे नहीं देते थे क्या लोग? तो ये इसके दिमाग में आइडिया कैसे आया? एग्जिस्टिंग चीज से ही उसने आइडिया लेकर के आया। और ओयो के पास आज की डेट में 23,000 होटल, हो सकता है ये फिगर चेंज हो जाए, इतने सारे रूम्स हैं, इतने सारे वेकेशन होम्स हैं, कि ये बंदा जो है बेसिकली कॉलेज ड्रॉप आउट है, उसकी जर्नी बड़ी स्ट्रगलिंग है। उसने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी जब वो 17 साल का था, मात्र 17 साल का था, तब से चालू करी। वो इंजीनियरिंग कॉलेज का ड्रॉप आउट है। अब आप ये सोचेंगे कि यार इंजीनियरिंग कॉलेज का ड्रॉप आउट है, इतना कैसे टेक्निकल हो गया, ऐसे कैसे खोल लिया यार इसने? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एंटरप्रेन्योर ग्रेजुएट हो, हर एंटरप्रेन्योर मास्टर डिग्री वाला हो, हर एंटरप्रेन्योर 10वीं 12वीं पास हो, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ऐसी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं वुमेन्स की, मेंस की, जो पढ़े लिखे भी नहीं है लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में है। तो इस बंदे ने क्या किया, ट्रेवल करता था ये बंदा, यहाँ वहां जाता था। जब ट्रेवल करता था तो किसी होटल्स में रुकता था, जब होटल्स में रुकता था तो वो देखता था कस्टमर क्या चाह रहा है और ये होटल वाला उसको दे क्या रहा है। तो उसके दिमाग में वो चीज आइडिया आई, और उसने अपने दिमाग में जो आइडिया था उसको कन्वर्जन में वो लगा। एंड व्हेन ही वाज 17 ईयर ओल्ड, ही ड्रॉप्ड आउट द कॉलेज एंड लॉन्च हिज फर्स्ट स्टार्टअप, ऑरवेल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि रातों रात उसको ओयो में सक्सेस मिल गई। सबसे पहले उसने ऑरवेल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड ओपन किया। आफ्टर दैट उसने भी लर्न किया, बजट देखा, क्या कस्टमर्स की नीड देखी, कस्टमर के बीच में रहा, वहां से सीखा, और वहां से सीखने के बाद उसने अपना खुद का स्टार्टअप चालू किया, दैट इज कॉल्ड ओयो। मतलब स्टार्टअप का नाम भी ना इजी होना चाहिए कि जो आपकी पब्लिक है, जो आपकी क्राउड है, वो आसानी से याद रख सके। अब देखिए, ये एक एग्जाम्पल है फाल्गुनी नायर का, नायका। यहाँ जितनी भी लेडीज बैठी होंगी, मेरे ख्याल से मैंने तो मंगाए हैं प्रोडक्ट नायका से। और नायका से हम क्यों मंगाते हैं प्रोडक्ट? हम अमेजोन पे भी तो सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बट नायका से क्यों मंगाते हैं? कुछ तो है, कुछ इनोवेशन तो है वहां पर।
तो ग्रेजुएट, ये जो बंदी है ये ग्रेजुएट, इसने MBA किया IIM अहमदाबाद से, देन स्टार्टेड किया कोटक महिंद्रा बैंक में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में थी ये बंदी ने डायरेक्ट स्टार्टअप चालू नहीं किया है। इस बंदी ने क्या किया है, डायरेक्ट आपने स्टार्टअप चालू नहीं किया है, ये सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक में थी, वहां पे उसने हुनर सीखे कि किस तरीके से ब्रांड करना है, कस्टमर से किस तरीके से डील करना है। तो एक पॉइंट और नोट करने की है कि यदि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो इसकी कोई उम्र नहीं होती है। KFC जो है आपने सुना होगा, आप लोग काफी यूज करते होंगे, उस बंदे ने एंटरप्रेन्योरशिप मेरे ख्याल से 50 की एज में चालू करी थी। तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत छोटे हो तभी आप एंटरप्रेन्योर के लिए एलिजिबल हो। आप मार्केट में जाइए, आप जॉब करिए, आप जॉब में भी बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। आफ्टर दैट यू कैन अडॉप्ट द आइडिया, यू कैन, बिकॉज आप उस समय और मेच्योर होते हैं एज ए जनरल कॉलेज पास आउट और एज ए पर्सन हु आर डूइंग जॉब फ्रॉम लास्ट 10 to 15 ईयर, बहुत डिफरेंस होता है। इट वाज फाउंडेड बाय 2012 में फाउंड किया, और जो बंदी है आज की डेट में काफी बढ़िया अर्न कर रही है नायका से। उसने सिंपल कस्टमर की नीड को समझा, कस्टमर की नीड समझने के बाद उसने एक सस्टेन किया नीड को। एंड इसकी जो सक्सेस स्टोरी है वो ये बोलती है कि ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन ऑनलाइन स्पेस, ऑनलाइन मार्केट में बहुत स्पेस है, उसने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी एंड शी फोकस्ड ऑन अ ब्यूटी विद हिज ब्रांड टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। और ये अपने कस्टमर्स के रिव्यूज, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और जो सस्टेनेबल ग्रोथ है उस पर बहुत ध्यान देती है। और मतलब मेरा कस्टमर जाए नहीं मेरे पास से, रुका रहे, सस्टेनेबल ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि एक बार कस्टमर ने परचेज किया तो मैं दोबारा उसको बुलाऊंगी नहीं। आप ये देखिएगा, यदि आपने आपका मोबाइल नंबर आज की डेट में किसी भी शॉपिफाई वेबसाइट पे देख लीजिए, यदि आपने आपका मोबाइल नंबर दिया है तो आप उस मोबाइल नंबर पे हमेशा उनके नोटिफिकेशंस, अलर्ट सुनते रहेंगे कि भैया ये लॉन्च हुआ, वो लॉन्च हुआ। तो ये डोर स्टेप डिलीवरी का मॉडल है आपका नायका का। देन ये श्रद्धा शर्मा है, योर स्टोरी, ये बिहार की बच्ची है। इसने पर्टिकुलर ऐसा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लेकर के आया जहां पर कि हम ऐसे सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से उनकी स्टोरीज को कवर करती है, बहुत ही सक्सेसफुल है योर स्टोरी। और योर स्टोरी का मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि टाइम अपने पास 1 आवर का है। ये काफी सक्सेसफुल है मार्केट में। अब हम डिस्कस करते हैं ऐसी कुछ लेडीज के बारे में जो बहुत स्मॉल टाउन से हैं और उन्होंने भी स्टार्टअप चलाए। ऐसा नहीं है कि हमेशा आइडिया बड़ा हो, ऐसा नहीं है कि हमेशा बड़े आइडिया ही स्टार्टअप में जाकर के कन्वर्ट होते हैं। छोटा से छोटा कन्वेंशनल आइडिया, बिल्कुल छोटा से छोटा ट्रेडिशनल आइडिया भी आपके स्टार्टअप करूँ ले सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये चारों लेडीज आपको क्या बहुत पढ़ी लिखी नजर आ रही है? एकदम घरेलू, बिल्कुल सिंपल, बहुत लिमिटेड रिसोर्स के साथ इन्होंने। ये जो है आपका चंद्रशेखरन, ये 41 साल की लेडी है। इसने जो क्विलिंग आप में से जो गर्ल्स यहाँ पर बैठी हैं, क्विलिंग आर्ट आप लोगों ने बचपन में बनाए होंगे, जो हम एक लंबी सी पेपर की स्ट्रिप होती है उसको इस तरीके से रोल करते हैं। और ये जो बंदी है इसने क्विलिंग आर्ट का काम चालू किया। ये तमिलनाडु की बंदी है और ये बहुत सारे लोगों को क्विलिंग आर्ट सिखाती भी है और ये क्विलिंग आर्ट ऑनलाइन बेचती भी है। इसकी खुद की भी वेबसाइट है, आप देखिए इस तरीके से क्विलिंग आर्ट का इसने स्टार्टअप चालू किया। देन यहाँ पर आपकी गोदावरी है। गोदावरी जो है ये 38 ईयर ओल्ड लेडी है जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। इस बंदी ने क्या किया है, एनेबल इन बिगिन फाइनेंशियली अवेलेबल। ये बंदी जो है इस पर्टिकुलर ये एक पेपर लैम्प बनाती है, पेपर लैम्प। उसके पास वही हुनर था, उसके पति ने जॉब छोड़ दी, घर में भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, तो बंदी के दिमाग में आइडिया आया। लेकिन आपको क्या लगता है इस बंदी ने जब पेपर लैम्प की कंपनी डाली होगी तो क्या इतना आसान होगा? क्या इसके पास इतने सारे रिसोर्सेस होंगे? नहीं। इनकी स्टोरीज आप लोग पढ़िए, लर्न फ्रॉम देम। हम तो उनसे लाख गुना बहुत अच्छे हैं। आज हमें कंप्यूटर चलाना आता है, आज हम ऑनलाइन हम लेक्चर सुन सकते हैं, हम उनसे लाख गुना बहुत आगे हैं। लेकिन हम बस सोचना है, हमें अपॉर्चुनिटीज देखनी है। अब ये सोबिता ने क्या किया है, पर्टिकुलर ये आपका असम से बिलोंग करती है, 35 ईयर ओल्ड है और ये सीएजू करके एक ऑल वुमेन सेल्फ ग्रुप में है और ऑर्गेनिक चीजों से जापिस बनाती है। जापिस जो होती है एक तरीके की ऐसी टोपी होती है और ये जापिस बनाने के लिए जो आपकी ऑर्गेनिक जो भी चीजें हैं ना वो यूज करती है। मतलब जो केले के छिलके हुए हैं सड़े वाले और ये मट्टी और ये सारी चीजों को मिलकर के, तो ये भी एक स्टार्टअप है, ये भी एक आइडिया। आप सोचो कहाँ नहीं है अपॉर्चुनिटी, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी हर जगह नहीं चल सकती। ये आप लोग नोट करके रखिए। क्या जोमेटो का बिजनेस गांव खेड़े में चल सकता है? आप सोच के देखिएगा, क्या जोमेटो का बिजनेस एक ऐसी एरिया में चल सकता है जहां की पब्लिक पढ़ी लिखी नहीं है, जिसको मोबाइल चलाना नहीं आता है?
नहीं चल सकता। तो हर स्टार्टअप का आइडिया लोकेशन बेस्ड होता है, लोकेशन पे बहुत मायने रखता है। देन यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं जो बैग्स वगैरह बनाते हैं। अपन थोड़ा टेक्निकल और लेते हैं स्टार्टअप। ये देखिए, ये छोटे से बच्चे, इन्होंने इतने सारे ऐप बनाए हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, पास्ट 3 ईयर में टू हैव डेवलप 11 ऐप। आप लोग सब टेक्निकल फील्ड के हैं, ऐप डेवलपमेंट। ये जब बच्चों ने स्टार्टअप डाला था तो इनकी उम्र थी ही नहीं कि ये लीगली एक स्टार्टअप को फाइल कर सके। तो इनके घर के 7 से 8 मेंबर उस कंपनी के पार्टनर्स हैं, लेकिन इनके दिमाग में आइडिया था कि भैया ऐप डेवलपमेंट करना है, और ये ऐप डेवलपमेंट इन्होंने किया। और फोर्ब्स अंडर 30 लिस्ट में भी आए, गो डायमेंशन करके आप सर्च कर सकते हैं। देन कुछ भोपाल बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, आप लोग जरूर इनसे कांटेक्ट करिए, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ये किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि भोपाल के काफी स्टूडेंट है हमारे इसमें। देन एक बहुत अच्छी ग्रोसरी है, आपका स्टार्टअप यूनिकॉर्न है, डेडाकॉन है या हैप्टोकॉन है, ये एक तरीके की कैटेगरीज ऑफ द स्टार्टअप है कि यदि कोई स्टार्टअप 1 बिलियन कमा रहा है तो वो यूनिकॉर्न में आ जाएगा, यदि वो 100 बिलियन कमा रहा है वो हैप्टोकॉन में आ जाएगा। आपको ज्यादा पढ़ना है तो medium.com एक वेबसाइट है, आप सिंपल डाल सकते हैं ग्रोसरी में, सिंपल आपका जो आपका EDC या एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड डिक्शनरी वर्ड्स है आप उसमें भी डाल सकते हैं। आप यहाँ देखिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक, ओरेकल, ये भी स्टार्टअप है, लेकिन ये इनकी कैटेगरी दूसरी है। यहाँ देखिए इंडियन यूनिकॉर्न दैट चेंजेस द डिकेड। यहाँ पर देखिए, कौन कहता है कि बस स्टार्टअप विदेश में ही बनते हैं, कौन कहता है कि स्टार्टअप केवल अंग्रेजी बना सकते हैं। हम जैसे इंडियन, आप जैसे बच्चे, आप जैसे पढ़ने वाले यंग बडिंग इंजीनियर्स ने ही ये सब बनाया है। बायजूस, हाई, पेटीएम, ये क्विकर, ये सारे के सारे, जोमेटो, ये सारे के सारे इंडियन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। इंडियन यूनिकॉर्न से मतलब क्या है, ये 1 बिलियन तो छाप रहे हैं भाई, लेकिन सबसे पहले इन्होंने कस्टमर बेस जुड़ा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन दिया। और ये आप देखिए 2021 की लिस्ट, तो आप ये मत सोचिए कि स्टार्टअप केवल एक ही सेक्टर में आता है। ये देखिए ई फार्मेसी में भी स्टार्टअप है, यहाँ बहुत सारे बच्चे फार्मेसी के, आप आपकी फार्मेसी को ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक फार्मेसी, आप इंटरनेट पे लेके आइए आपकी फार्मेसी को। सोशल मीडिया से रिलेटेड शेयर चैट है, इंश्योरेंस, सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहां पर आप स्टार्टअप लेके आ सकते हैं। नाउ वन पॉइंट जो अलार्मिंग पॉइंट है, जो आप जैसे बच्चों के लिए जो बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं, मैं उनके लिए एक फेलुअर स्टोरी लेकर के आई हूँ कि ख्वाब देखिए लेकिन जमीन से लग करके देखिए, क्योंकि ख्वाब देखना और ख्वाब को पूरा करना बहुत अंतर है। और बने बनाए वेंचर को देखिए आप किस तरीके से वेंचर आपका फेलुअर हुआ, बना बनाया वेंचर। आप में से बताइए ऐसे कितने लोग हैं जो नोकिया का नाम नहीं सुना जिसने? नोकिया एक ऐसी कंपनी जिसने स्मार्टफोन मार्केट में धूम मचा दी थी। और आज की डेट में क्या आपके घर में एक आध कोई नोकिया का मोबाइल है? Do you have a single mobile of Nokia? Do you have? No. Why? क्यों नहीं है? एक समय पे हर घर में मोबाइल होता था नोकिया का, हर बंदा नोकिया का मोबाइल यूज करता था, लेकिन आज के डेट में नोकिया बिल्कुल साफ है मार्केट से। क्यों है? जबकि ये फर्स्ट स्मार्टफोन कंपनी थी आपकी। मयंक फीडबैक लिंक शेयर कर देना, मैं बस कंक्लूड कर रही हूँ ये वाला स्लाइड के बाद। ओके मैम। ये फीडबैक कम क्विजी लिंक है, जो अपन ने अभी जितना भी स्टडी किया उसका क्विज है 2-4 क्वेश्चन का, और फीडबैक है 2-3 पॉइंट्स के इज रिलेटेड टू दिस सेमिनार। देखिए फेलियर स्टोरी, अब आपको यहाँ पे लर्न क्या करना है। यदि आपकी कंपनी स्टैब्लिश हो गई, आपकी एंटरप्राइज स्टैब्लिश हो गई, बट इट डजंट मैटर कि ये चलने ही वाली है, आपको मार्केट के साथ कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा। आपको आज के कस्टमर की सोच से अपनी सोच, उसकी थिंकिंग से अपनी थिंकिंग मिलानी पड़ेगी, तभी आप मार्केट में सक्सेस है। तो नोकिया की फेलियर स्टोरी से हमें क्या सीखने मिलता है? हम पढ़ते हैं फेल टू कम्पीट द स्मार्टफोन मार्केट। भाई सैमसंग आ गया, ओयो आ गया, आपका ओप्पो आ गया, एप्पल आ गया, आईफोन्स आ गए, लेकिन नोकिया वाला कहाँ पर फेल हो गया? वाइल कंपनीज लाइक सैमसंग, एप्पल, HTC, ये सारे कंपनीज के मोबाइल हैं भैया अपने घर में आज हैं, लेकिन नोकिया का नहीं है। आजकल की तो भाइयां भी नोकिया का मोबाइल नहीं रखती क्योंकि चलते नहीं भैया मार्केट में। सो वर मेकिंग सॉफ्टवेयर ड्रिवन फोन्स, क्योंकि नोकिया वाज स्टिल फिक्सेटेड ऑन द ट्रेडिशनल फोन्स। ट्रेडिशनल वो पीली स्क्रीन वाले फोन, बड़े मतलब स्मार्टफोन नहीं थे, उनका UI इतना टफ था कि हमें हर चीज टाइप करना पड़ता था। जैसे ही हमारे पास वो सैमसंग का मोबाइल आया जिसमें टच स्क्रीन आई, अंगूठे का ज्यादा यूज, टच स्क्रीन, हमने क्या किया, धीरे धीरे नोकिया को बोला बाय, नोकिया को बाय, और हम धीरे धीरे जो सिम्बियन OS था, सिम्बियन OS
से हम धीरे धीरे स्मार्टफोन पर सभी के सभी डाइवर्ट होते गए, जबकि हमें पता था नोकिया हमें बहुत अच्छी सर्विस दे रही है, बहुत अच्छा रिलायबल कंपनी है। लेकिन नोकिया की सबसे बड़ी फेलियर क्या है, नोकिया सीईओ जिस दिन उसका कंपनी बंद हुई, वी डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग बट समहाउ वी लॉस्ट। वो बंदा रो रहा था और वो ये कह रहा था कि हमने किसी का कुछ भी नहीं किया, लेकिन पता नहीं हमारे साथ हुआ क्या। तो उसकी फेलियर स्टोरी उसकी जो फेलियर स्टोरी थी वो ये थी कि मैनेजमेंट टीम ऑफ द नोकिया फेल्ड टू सी हाउ सॉफ्टवेयर इज टेकिंग प्रेसिडेंस ओवर द हार्डवेयर। किस तरीके से हार्डवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर आपका लॉन्च हो रहा है, किस तरीके से यूजर इंटरफेस चेंज हो रहा है, किस तरीके से कस्टमर आज की डेट में इजी टू यूज इंटरफेस की डिमांड कर रहा है। उन्होंने मार्केट सर्वे किया ही नहीं, उनको लगा यार वी आर द बॉस इन द मार्केट, हमको कोई नहीं हरा सकता। तो नोकिया का सबसे बड़ा फेलियर ये था कि उन्होंने मार्केट सर्वे आफ्टर दी सक्सेस ऑफ द एंटरप्राइज नहीं रन करी, और नहीं रन करने के बाद वो ये वाले गैप को नहीं स्टडी कर पाए कि मार्केट में चल क्या रहा है, यूजर चाहता क्या है, और उसी गैप का फायदा उठा करके एप्पल और बाकी जो स्मार्टफोन कंपनीज हैं उन्होंने लॉन्च कर दिया। और आज की डेट में सक्सेसफुल जो नोकिया था वो सबसे हाईली अनसक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की लिस्ट में आता है। और भी ऐसे बहुत सारे फील्ड स्टार्टअप्स हैं जो कि नहीं चल पाए मार्केट में। तो जितनी आपको सीखने को मिलता है सक्सेस एंटरप्राइज से, मतलब सक्सेसफुल एंटरप्राइज से, उतना ही आपको फेलियर एंटरप्राइज से भी सीखने को मिलेगा। तो आई विश कि आप फेलियर स्टडी करें, लर्न फ्रॉम देम, यार मार्केट सर्वे कर लें कस्टमर की नीड, क्योंकि आज का कस्टमर बुद्धू नहीं बन सकता। आज के कस्टमर के जेब में पैसा है लेकिन निकाल के आना चाहिए, तरीका आपके पास है। आज का कस्टमर बहुत इंटेलिजेंट हो गया है। आज की जो नानी और दादी हैं, दे ऑल्सो नो हाउ टू ऑपरेट फेसबुक, दे ऑल्सो नो हाउ टू डू वीडियो कॉलिंग ऑन व्हाट्सएप। तो भैया इतना आसान नहीं बचा है आज की पब्लिक को